वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसिय गुरु के दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए जिस डिठै सब दुख जाए जिस डिठै सब दुख जाए डिठै सब दुख जाए जिस डिठै सब दुख जाए डिठै सब दुख जाए जिस डिठै सब दुख जाए
जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ते आए। श्री हरि कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए। डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। डिठे सब दुख जाए। डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर करनो नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमर करनो नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमर तेग बहादुर सिमर करनो नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। रामदास होए सहाय। हर जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए।
ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖਵਾਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ, ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 8ਵੀਂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕੀ ਵਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਵਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਜੋਤ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਜੁਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋਤ, ਜੁਗਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕਣੀਓ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋਹਰੀ ਲੋਕ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਖੂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए चमकन भरत भंडार जी। मोल किए दमकन भरत भंडार जी। दमड़ियां दे नाल भंडारे भर जाते ने। बेशक हीरे दा निक्का जिहा कोई टुकड़ा होवे, हीरे दी भावें निक्की जी कणी होवे, ओ निक्का होना, ओ छोटा होना मायने नहीं रखदा। मायने रखदी है बरकत, मायने रखदी है ओहदे अंदरली जुगत, ओहदी असली कीमत। जैसे बरबां ते हुंडी लगत ना भार कछ। पुराने वेलियां विच पैसिਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਡੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ।
कोई वजन नहीं लगता। पर जे किते लखां दी हुंडी लिख के आ गई, लखां दा रुपया लिख के आ गया, लखां दी रकम दा कोई बैंक दा चैक लिख के आ गया, ते जदों चैक तारिया जाएगा, हुंडी तारी जाएगी और रुपया भुनाया जाएगा, ते फिर ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ थैले भर जाते ने पैसों नाल। लखां दी कीमत कागज़ का एक टुकड़ा ही है, पर कितनी दौलत संभी बैठा है, कितनी माया संभाली बैठा है, कितना धन संभी बैठा है निक्का जिहा टुकड़ा। जैसे बट बीजत सूक्ष्म स्वरूप होत। भाई साहब कहते कि बट वृक्ष हुंदा है जिन्हों असीं बोहड़ दा रुख कहते हैं। बोहड़ दे रुख की पैदाइश एक निक्के जे बीज तो ही होती है, ते जे बोहड़ दे रुख का किसी ने बीज वेख्या होए तां उहनूं जानकारी होएगी कि बीज निक्का जिहा ही हुंदा है, हथ विच आ जाता है। पर जदों बीज जमीन विच पै के फलदा है, फुलदा है, वधदा है, तां एडा वड्डा विशाल काय रुख बन जाता है, बोहड़ दा रुख। जैसे बट बीजत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए सब विद करे बिरख बिथार जी। बड़ा विस्तार हो जाता है बोहड़ दा। पिंडां विच आम ही बोहड़ दे रुख वेखण नूं मिलिया करते सन, शायद किते किते अज भी कायम होवण। वेला हुंदा सी कदे कि बोहड़ दे रुखां दी बहुतात होया करदी सी। समा बदल गया, हालात बदल गए, बोहड़ दे रुख भी घट गए। पर बोहड़ दे रुख की जो विस्तारित तरक्की है, उहदा विस्तार है, वो एक निक्के जे बीज तो ही हुंदा है। भाई गुरदास जी सानू दसना चाहते हैं। तां हुण वडियाई की साबित करते ने, कहते ने तैसे गुर बचन सच्चन गुर सिखन में। तिवें गुरु दे वचन भी सिखां लई इतने ही मुल्यवान ने, इतने ही कीमती ने, इतने ही पायेदार ने, इतने ही वडमुल्ले कीमती ने। पर इन्हां दा महात्म, इन्हां दी वडियाई, इन्हां दी शोभा, इन्हां दी महिमा गुरु द्वारे जाके, हरि द्वारे जाके, सचखंड दरबार जाके ही मालूम पैंदी। ते गुरु दा वचन है कि श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु आखदे ने कि श्री हर कृष्ण जी नूं ध्याना करिए, जिन्हां नूं वेखदे ही सारे दुख मिट जाते ने, जिन्हां दा दर्शन पाउंदियां ही सारे दुख मिट जाते ने। गुरु पधारे ने दिल्ली विच, चेचक दा भैड़ा रोग वरतिया है दिल्ली विच। जिवें अज दे समय दा भयानक रोग महामारी कोरोना असी जानते हैं, तिवें चेचक भी एक महामारी हुंदी सी, जिन्हों आम लोग माता कह के भी बुलाते सन। चेचक दे असर हेठ जीवन गवाचदा, जिंदगी मुक जाती, मौत हो जाती। कई शरीर अखां तो मनाखे हो जाते, अन्ने भी हो जाते। चेचक दा इन्ना भैड़ा असर हुंदा शरीर उत्ते, मुख मस्तक उत्ते, कि सुंदर तो सुंदर चेहरा भी करूप हो जाता। ऐसी महामारी सी चेचक किसी वक्त। पर हौली हौली समय ने तरक्की की, दवा दारू ईजाद होए, विज्ञानिक ढंग तरीके आए, इलाज बने, दवाइयां बनियां, तां चेचक के असर तो मनुखता का बचाव होया। ठीक गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज उसे दौर दौरान दिल्ली पधारे सन। चेचक का जोर वधिया, संगतां ने गुरु चरनां विच अरदास बेनती की। साहिबां ने सारी दिल्ली का दुख अपने शरीर ते लिया, सारी दिल्ली का रोग, सारी दिल्ली की बीमारी सतगुरां ने अपने शरीर ते लै लई। पर दिल्ली वासियां नूं दिल्ली विच वस के ही सुख वड्डे ने, दातां वड्डियां ने, बरकतां वड्डियां ने, खुशियां वड्डियां ने।
रोगियां नूं अरोग कीता, निरोग कीता, तंदुरुस्त कीता सच्चे पातशाह ने। मिर्जा राजा जय सिंह दे बंगले विच पधारे सन सच्चे पातशाह। उदों दे इस बंगले नूं सारी दुनिया बंगला ही कह के जानती सी, पर जिस दिन गुरु जोत आवरती उस दिन तो ये बंगला बंगला नहीं रहा, बंगला साहिब हो गया। साहिब आए, साहिबी नाल जुड़ गई। जगह दे मालक आ गए, मालकी नाल जुड़ गई। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज नूं क्यों ध्याना है? क्योंकि मनुखता दा दुख हर लिया उन्होंने। उन्हां दे दर्शन प्रताप नाल ही महामारी मिट गई, रोग मिट गया ते सारी दिल्ली दा रोग समेट के, सारे दिल्ली वासियां दा दुख समेट के, सारी मनुखता दा दर्द समेट के सच्चे पातशाह दिल्ली दे बाहर जमुना किनारे बाला साहब अस्थान ते जाके शरीर त्यागदे ने। गुरु दी महान वडियाई है, गुरु दी पछाण है कि सच्चा गुरु जगत नूं सुख देगा, जगत दे विच वस के ते जगत दे दुख अपनी झोली पवा के, जगत तो परां हो के, निर्लेप हो के, नवेकला हो के सारे दुखों नूं अपने आप ते चलेगा। जे सानू याद रहे कि गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दा ज्योति जोत वसना, ज्योति जोत समाना किस कारण करके होया सी? सिर्फ इको ही कारण सी कि सच्चे पातशाह ने रब्बी रजा विच रहिंदियां दिल्ली वासियां दा कष्ट अपने शरीर ते ले लिया सी। अजे दुनिया कहती सी कि बच्चा गुरु किवें हो सकता है, बच्चा इतनी महानता दा बरकत दा मालिक किवें हो सकता है। ये धर्मां दा इतिहास है जो अज तक सानू दसदा आया है कि रब्बी जुगत, रब्बी बरकत, रब्बी वडियाई किसे दी उम्र वेख के नहीं वरतदी, किसी का शरीर वेख के नहीं वरतदी कि शरीर करके कोई तगड़ा है, उम्र करके कोई वड्डा है, नहीं। ये ते बख्शिशां ने ते दातां ने रब दे कर दियां, यह योग पुरखां दी झोली पैंदियां ने। जो सचमुच योग हुंदे ने, लायक हुंदे ने, काबिल हुंदे ने, सच्ची तरह नाल जुगत दे धारनी हुंदे ने, उन्हां नूं ही प्राप्त हुंदियां ने वडियाइयां, ये बरकतां। धर्मां दा इतिहास कहंदा है कि बच्चे आए ने बड़े जगत विच जिन्हां दे कोल वड्डे बजुर्गां नालों भी वध के सियाणपां होया करदियां सन। कांठोपनिषद विच जिक्र मिलदा है एक बच्चे नचिकेता दा। बच्चा है, मासूम है, पिता दे घर पल रहा है ते पिता दा नेम है कि वह गवां दान करता है, दान देण विचों बड़ा भरोसा रखता है ते दान करता है गवां। लेकिन इस मासूम बच्चे ने परख लिया कि पिता दान ते करता है, पर दान करता है बीमार गवां दा, बुढ़ियां गवां दा जो किसे काम दियां नहीं। तां नचिकेता ने पिता दी अवज्ञा कीती, पिता दी खिलाफत कीती। कहन लगा, पिता जी जे दान करना है ते अपनी कोई कीमती चीज दा त्याग करो, जो तुहानू सब तो ज्यादा प्यारी होवे ना, जो तुहाडी रूह नाल जुड़ी होवे उस चीज दा दान करो। जे त्यागना है ते उस चीज नू त्यागो। ये बुढ़ियां बीमार गवां दान कर करके तुहानू कोई पुण्य नहीं मिलना। हुण प्यो सोचता है कि पुत्त मेरे सामने किंज बोल सकता है, बच्चा है, मेरे करके इहनू जन्म मिलिया है, मैं इहनू पाल रहा, हर तरह की सहूलत दे रहा, ते मेरे सामने खिलाफ बोल रहा है, मेरी खिलाफत करता है। प्यो नू रोस बनिया, रो चढ़िया। प्यो कहन लगा, ठीक जे यही गल है ते मैं तैनू ही दान कर देना।
ते तैनू दान भी करांगा ते यमराज नूं, मतलब कि मौत नूं दान कीता है अपने पुत्तर नूं। हुण प्यो उम्र विच वड्डा होएगा, कुछ तजर्बा भी होएगा दुनियादारी दा, उन्होंने थोड़ी बहुत अकल सियाणप नूं भी हथ मारन वाला होएगा, पर वो गल किन्नी गिरी हुई कर रहा है, कारनामा किन्ना नीच कमा रहा है। पुत्त दी गल दा गुस्सा मन के कहन लगा कि मैं तैनू ही दान कर देना, ते दान भी करना ते यमराज नूं। नचिकेता तैयार है, कहंदा ठीक है कर दिओ दान। यमराज नाल सामना होया ते इस छोटे जे मासूम बच्चे ने यमराज नूं ही पूछया कि तेरे तो भी वड्डा कोई है, तेरे तो ऊपर भी कोई है, तेरे तो महान भी कोई है जिहदे हुक्म च तू चलदा होएगा। यमराज ने आख्या कि हाँ, मैं भी किसी दे हुक्म दा गुलाम हाँ, ते जिहदा हुक्म मेरे ते चलदा है वो पार ब्रह्म है, निराकार है, परमेश्वर है। नचिकेता कहन लगा कि फिर मैनू उस नूं दान करो ना। वड्डी गल ते यही है कि सब तो वड्डे नूं दान करो, फिर मैनू छोटियां नूं क्यों दान कीता जा रहा है। मैनू किसी महान पुरख कोल दान दिओ। मैनू बच्चा सी, मासूम सी, बहुता धर्म कर्म का भी शायद पता नहीं सी, बहुती विद्या भी शायद ग्रहण नहीं सी कीती, दुनियादार दे व्यवहार वालों भी अजे अनजान ही मन्निया जाएगा, पर वो बच्चा रब तक पहुंच गया, परमात्मा तक पहुंच गया। यमराज नूं कहंदा है कि मैनू उत्थे लै चलो जिहदे हुक्म विच तुसीं चलदे हो। प्यो ते बुढ़ियां गऊआं दान करदा पिछे ही छुट गया। प्यो ते बीमार गऊआं दान करदा करदा होछा जा पुण्य कमाउंदा कमाउंदा बहुत पिछे रह गया। पर नचिकेता एक मासूम बच्चा रब तक पहुंच गया। दो बड़े खास बच्चों का जिक्र गुरबाणी भी सानू सुणाती है। गुरु दे बोल पढ़ते सुनते साडी नज़र विच कदे शब्द आया होवे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। ध्रुव की उम्र भी 5 साल सी, प्रहलाद की उम्र भी 5 साल सी। ध्रुव नूं मतरेई मां ने घरों कढ़ दिता, पिता की गोद विचों कढ़ दिता। मासूम बच्चा है, हिरदे नूं सट वजी, सदमा लगिया। अपनी जन्मदाती माता नूं पुछदा है कि माता मैनू पिता का प्यार किंज मिलेगा। मतरेई मां मेरे नाल वैर ना कमाए किवें होएगा। मैनू भी पिता की गोद का निग मिले, मैनू भी पिता का प्यार मिले। माता नूं पुछदा है कि माता तू सचमुच राणी सी जां फिर गोली सी जो तेरे नाल इन्ना निरादर हो रहा है, मेरा भी नाल निरादर हो रहा है। कहण नूं ते मैं राजे दा पुत्त हां, पर राजे दी गोद नसीब नहीं हो रही मैनू। माता धर्मी सी, कहण लगी पुत्तर मैं नाम नहीं सी जपिया वाहिगुरू दा, इसे करके धक्के पे ने, इसे करके निरादर होया, इसे करके पिता दे प्यार तो तू बन जा रहा। बस इन्नी को गल का ही असर हो गया। समझ गया कि माता नाम तो खुंज गई है, पर माता खुंजी है, मैं नहीं खुंजांगा। रब दा नाम जपण लई जंगलों वाल तुर पिया है। जदों प्यो तक खबर पहुंची कि मासूम बच्चा जंगल बियावान तुर पिया है नाम जपण लई, भजन बंदगी लई, प्यो नूं तरस आया, मोह भी जागया। अद्धा राज भाग उसे वक्त देण दा फैसला कर लिया। ध्रुव कोल वजीर पहुंचे ने, सियाणे पुरख पहुंचे ने कि बेटा इन्नी छोटी उम्र का बच्चा जंगलों विच जाएगा, किसी शेर बघेले का शिकार होएगा, जान गवाएगा नहीं। पुत्र वापस परतो, तुहाडे पिता तुहानू अद्धा राज देण लई मन गए ने। हुण एक छोटा बच्चा है, सोचदा है कि अजे ते तुरिया ही आ नाम जपण लई, पहले ही
ही अद्धा राज भाग मिलन लग पिया। जे किते सचमुच जाके नाम जपदा, फिर की बरकत बनती, फिर की वडियाई मिलती। ते इतिहास गवाह है, दुनिया ते अज भावें मिथिहास ही दसदी है इन्हां गल्लां नूं। ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। 5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਧਰੂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਅਟਲ ਅਡੋਲ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਯੋਗ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਧਰੂ ਭਗਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰੂ ਨੇ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਐਨਾ ਅਟਲ, ਐਨਾ ਅਡੋਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਏ ਪਿਓ, ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਏ, ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਏ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਏ, ਪਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਿਤਨਾ ਨੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਧਾਰਦਾ ਏ, ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ, ਕਿ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਥਲ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਮਿਆ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਮਿਆ ਦੇਖਦਾ ਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬੀ ਬਰਕਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਗਤੀ ਪਾ ਜਾਏ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਧਰੂ ਵੀ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਧਰੂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਨਚੀਕੇਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਝਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਘੋਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਾਰਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੱਚਾ।
मैनू मिलते सार कहन लगा कि जनाब तुसी कुछ परेशान नज़र आते हो। बच्चे पढ़ लेंदे ने, बच्चों का दिल बड़ा साफ हुंदा है, स्वच्छ हुंदा है, निर्मल हुंदा है। बच्चों के कही हर गल का असर भी सहज ही होया करदा है। एक कोरे कागज़ की तरह बच्चों का अंतःकरण हुंदा है, जो समझ पक्षों भी बड़ा साफ हुंदा है ते नाल बोलण पक्ष तो भी, बाणी दे पक्ष तो भी बड़ा साफ हुंदा है। ते उस बच्चे ने झपदे पछाण के ही कह दिता कि जनाब की गल कुछ परेशान लगदे हो। सादी लिखते ने कि मैं उस बच्चे नूं कहा कि परेशान तो मैं हाँ, मैनू भुख बड़ी लगी है, नाल मेरा खोता है वो भी भुखा है, असीं लम्मी वाट कढ़ के आए हैं ते नाल मेरा कुक्कड़ भी एक ते भी भुखा है, पर मेरे कोल बस इको ही टका है। उन्हां वेड़ियां विच एक टका भी चंगी कीमत रखदा सी ते असीं तिन्ने ही भुखे हाँ, पर मेरे कोल बस एक टका है ते मैं सोचदा इस एक टके दा की लवां जो मेरा खोता भी रज जाए, कुक्कड़ भी रज जाए ते मैं भी रज जावां। ओ बच्चा बड़ा सियाना सी, कहन लगा हजूर ऐना सोचण दी की लोड़ है, एक टके दे हदवाणे खरीद लियो, हदवाणा आप खाओ, ओदे छिल्लड़ अपने खोते नूं खिलाओ, ओदे बीज अपने कुक्कड़ नूं खिलाओ, तिनों जने तृप्त होके अगे जाओ। शेख सादी खुद लिखते ने कि मैं उस बच्चे दी सरजमीन नूं चुम लिया, झुक के उस धरती नूं सजदा कीता, नमस्कार कीती, मत्था टेकिया। मैं सोचा कि इन्ना सियाना बच्चा इस धरती का जन्मपल है, इतना सूझवान बच्चा इस जमीन का जन्मपल है, इस जमीन विच कितनी बरकत होएगी, कितनी ताकत होएगी। एक अणभोल बच्चा भी इन्नी वड्डी समझ रखता है। ये सारे प्रमाण केवल इसलिए सुनाए जाते ने कि धर्मी सियाणप, अकली सियाणप जरूरी नहीं वड्डियां उम्रां ते ही वरते, ये छोटी उम्र विच भी वरत सकदी है। ते गल जदों गुरता गद्दी दी आवे, गल जदों गुरमत दी आवे, गल जदों गुरसिੱਖੀ दी आवे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ देखते ही पता लग जाता है, गुरु इतिहास पढ़ते ही पता लग जाता है कि सारा कुछ तो गुरु की बख्शिश करके ही बनता है। ये सारी वडियाई गुरु की बख्शिश सदका ही हासिल होया करती है। 12 साल का बच्चा गुरु नानक देव जी महाराज नूं पुछदा है कि सतगुरु जी मौत का डर किवें मिटे। हुण इस सवाल सुन के ही सानू समझ जाना चाहिए है कि सवाल किसी बच्चे का नहीं होएगा, ये सवाल तो किसी बुढ़े पुरख का है। इसे करके सच्चे पातशाह ने उस बच्चे को नाम दिता भाई बुढ़ा जी, क्योंकि सियाणप बुढ़िया वाली, समझ बुढ़िया वाली है। सवाल भी अंदर बुढ़िया वाले उठ रहे हैं कि मौत का डर किवें मुके। आम दुनियादार बालां नूं मौत की समझ नहीं हुंदी, मौत का डर मुकाउण की भी सोची नहीं हुंदी, पर जे किसी दे अंदर ये सवाल जागदा है तां समझ लेना कि वो बच्चा बच्चा नहीं, वो बच्चा ते बजुर्ग है, बुढ़ा है, बूढ़ा है। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ते बख्शिश बचपन विच ही वरती। गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज तिन्हां ते भी ये बख्शिश बचपन विच ही वरत गई। धर्मी सियाणप गुरमुखताई, गहन गंभीर सोच, अगम अगाध बुद्धि बोध, ये सब कुछ बचपन की उम्र विच ही हासिल होया। गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हर राय जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अंगद देव जी, इन्हां सारियां नूं ये बख्शिश पर जवानी की उम्र विच हासिल होई। ते इधर गुरु अमरदास जी महाराज नूं ये दात जोत जुगत वडियाई बुढ़े वारियां हासिल हुई।
का कोई तकाजा नहीं है, शरीर की छोटे वड्डे होने का कोई तकाजा नहीं है। शरीर कमजोर है, ताकतवर है, ऐसी कोई गल नहीं। अकल करके कोई सियाना है, कोई मूर्ख है, ऐसी भी कोई परख नहीं। ये ते बख्शिश है, ते कृपा है जो गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज की झोली पई। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज का तमाम जीवन पंथ वेख लईए, पड़चोल लईए, पता लगता है कि सतगुरु हर पक्ष तो पूरे ने। लालचंद नाम का ब्राह्मण सवाल करता है कि नाम ते हरकृष्ण धराया है, कृष्ण वर्गे गुण कित्थे हो सकते हैं। कृष्ण ने गीता उचारी सी, एक गीता दे अर्थ करके ही सुना दें। लालचंद नूं भी यही हंकार सी कि ते बच्चा है कोई, बच्चे ने कित्थे इन्नी विद्या ग्रहण की होएगी जिन्ने वेद शास्त्र मैं पढ़ मुकाए नहीं, जिन्नी पढ़ाई मैं की होनी है इन्हां नूं ते उन्नी पढ़ाई दा अखर भी कोई मालूम नहीं होना। इसलिए उन्हें शंका कीता, सवाल कीता। श्री पंजोखरा साहब की धरती इस मुलाकात की गवाह है, उत्थे सतगुरां दा पावन दरबार सुभाईमान है। तां हुण सवाल करता है कि गीता दे अर्थ ही करके सुना दिओ। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज पछाणते ने कि लालचंद जात अभिमानी है, लालचंद विद्या हंकारी है। हंकार ते कोई मान नहीं हुंदा, इत्थे ते दो दो हंकार ने, दुगना हंकार चपड़िया होया है। सतगुरु कहन लगे कि लालचंद जी, विद्या पढ़न नाल परमात्मा नूं नहीं पाया जाता, परमात्मा की प्राप्ति ते परमात्मा का ज्ञान होण नाल हुंदी है। अर्थ पढ़िया प्राप्ति नहीं हुंदी। अर्थ पढ़न वाले बड़े आए बड़े गए, ऐसे पहाड़े पता नहीं पूरा दे पूर इत्थे चल के आए ते इत्थों तुरते गए। पर परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की नेड़ता, परमात्मा प्यार विद्या पढ़ पढ़ के नहीं मिलता, ये परमात्मा का ज्ञान हो जाण नाल ही प्राप्त होता है। रब नूं पाउणा है ते रब का ज्ञान होना लाजमी है। लालचंद शायद ना समझ सकता इन्हां गल्लां नूं। सतगुरां ने उन्होंने चोण दिती है कि अपने हथ का बंदा लै आ, गीता के अर्थ करके सुना देने ते वह हंकारी अपने आप विच वड्डा चतर लैके किसनों आया है, छज्जो नाम के झीवर नूं, जिहड़ा जुबान तो भी गूंगा है, बोल भी नहीं सकता। ऐना कपटी वो लालचंद ब्राह्मण। सतगुरां ने छूट दी कि अपने हथ का बंदा लै आ, मतलब सी कि कोई अनपढ़ गवार भी ले आए तो वो भी अर्थ कर देगा, पर वो हंकारी पुरख गूंगा भी ले आया नाल। छज्जो जीवर जन्म तो ही गूंगा है, पढ़ना लिखना ते दूर की गल, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कदे विद्या के नेड़े भी लंघिया होवे। पर गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज की एक छड़ी का ही कमाल सी कि सीस उत्ते सच्चे पातशाह ने छड़ी टिकाई, छज्जो जीवर दे कपाल खुल गए ने, कपट खुल गए ने, सुरत दे त्रै काल की सोजी हुई है ते छज्जो जीवर अपने आप गीता के श्लोक पढ़ पढ़ के अर्थ सुनाई जाता है। ये बरकत बच्चे दी हो सकती है नहीं, ये बख्शिश बरकत तुरती है, निरंकार दे करती है। मिर्जा राजा जय सिंह दी राणी ने भी शंका कीता कि बच्चा गुरु किवें हो सकता है। परख करती है कि अंतरजामी होणगे, क्योंकि गुरु की हस्ती बारे सानू सारे नूं बड़े भरम भुलेखे बने रहते हैं। उस बीबी नूं भी यह शंका सी कि बच्चा किवें गुरु पदवी का मालक हो सकता है। चलो परख करके वेखदे हैं। परख का सवाल सी कि मैनू पछाणन गुरुदेव, पटराणी नूं पछाणन के पटराणी कौन है।
आप गोलियां वाले कपड़े पहन के गोलियां विच ही बह गई है। जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज बंगले विच पधारे, साहिब सीधे ही पटरानी दे सन्मुख जाके खड़े होए। कहन लगे, माता जी पिछले जन्म दा बीजिया ही वढ़ रहे हो, पिछले जन्म दा बीजिया ही खा रहे हो। जे हुण नाम ना जपिया ते मुड़ के गोलियां विच ही बैठना पैना। गल बड़ी पते दी सी, गल बड़ी महान सी, क्योंकि करन वाले जो गुरु महान हन। समझा दिता कि अपनी चतुराई नाल गुरु हस्ती दी परख पाउणा ही योग नहीं है, सगों विचारना है, अपने कर्मां दे प्रति सावधान होना है। पुरबले कीते चंगे कर्मां दे फल सदका राज पाट माण रहे हो, राज भाग दा सुख माण रहे हो। पर जे हुण परमात्मा दा शुक्र ना कीता, हुण वाहिगुरु दा नाम ना जपिया, तां गोलियां विच ही रलना पएगा, अगां नूं दुखां विच ही खचत होना पएगा। औरंगजेब आया सी दरां ते खड़ा रहा, पर गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ने कह दिता कि जे ते करामातां वेखणीआं ने ते राम राय कोल जाओ। जे गुरु स्वरूप दा दर्शन करना है ते गुर शब्द लिख के भेज देंगे। गुर शब्द दा दर्शन ही गुरु जोत दा दर्शन है। एक एडे हंकारी हुक्मरान नूं ये गल कह के तोड़ देना खाली अपने दर तो, ये महान गुरु दी महान वडियाई दी करामात है। निर्भयता दी, सरबग गुरु दी सरबगता दा मान है। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते आए ने कि राम राय ते टुट के दुखी हो गया, पर गुरु हरकृष्ण नूं जो देखदा है वो सुखी हो जाता है, ਉਹਦੇ दुख कट्टे जाते हैं। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज तिन्हां ने अपने अंतले समय जो चुनिया ना, वो भी पूरा ही चुनिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई घाट नहीं रहन दिती। पहला ते सच्चे पातशाह दा वचन ही वेखो कितना पूरा है अपने आप विच कि बाबा बसत है ग्राम बकाले, कि बाबा जी पिंड बकाले विच वसदे ने। हुण वसन वाले ते धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज ही सन। बाकी ते जिहड़ियां 22 मंजियां लगियां सन आके, ਉਹ ਤੇ मौके दी मौके आके बैठे सन मौका परस्त लोग। जदों दिल्ली तो खबरां पंजाब पहुंचियां कि गुरु पातशाह दा वचन होया है कि अगला गुरु बकाले होएगा, तां वो लोग चढ़ चढ़ा के आ गए, मंजियां ढा के बह गए, पीड़े ढा के बह गए। वो वसदे नहीं सन उत्थे, पर वड्डे सतगुरां दा वड्डा वचन, पूरे सतगुरां दा पूरा वचन ते वो भी पूरियां दे लई होया कि बाबा बसत है ग्राम बकाले। ये पूरे वचना दा भेद कोई पूरा सिख ही पा सकिया। मक्खण शाह लुबाणा ओने बकाले विच आउंदियां ही घोख कीती, पड़ताले कीती कि इत्थे कौन बाबे वसदे ने, वसण वाले कौन ने, क्योंकि जिहड़ा वसदा होएगा वो ते काफ़ी लंबे समय तो वसदा होएगा। ऐसा नहीं कि मौका प्रस्तां वांग अजकल भलक च पीड़ा ढा के बैठा होएगा, गद्दी ढा के बैठा होएगा, नहीं। ते फिर दसन वालियां दस भी दिता, क्योंकि परख लिया ना कि पूरे दी भाल विच पूरा ही आया है। कोई पूरे दा वचन मन के, पूरियां ने वचन कीता बाबा बसत है ग्राम बकाले। पूरे सिख ने मन विच धारिया ते पूरे गुरु दी भाल विच आया। वसदा गुरु पुछया, वसण वाले बाबा जियां बारे पुछया, तां दसन वालियां दस भी दिता कि भोरे विच वसदे ने। इस चोण तो ही पता लग जाता है कि श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज कोई महज 5-7 साल की उम्र के बालक नहीं सन, अबोध अनभोल बच्चे नहीं सन। वो महान गुरु सन, वो पूरे गुरु सन, क्योंकि अपने तो बाद भी जो थापिया वो भी पूरा ही थापिया। वो थापे हुए ने ऐसे कारनामे पूरे करके दिखाए जिन्हां दा अज तक कोई सानी नहीं सी।
ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜਪਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਸਾਰਾ ਚੱਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਈ। ਪੂਰੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾ, ਨੌ ਨਿਤਾਂ ਧਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਦੀਨ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ ਨਾ, ਨੌ ਨਿਤ ਭੰਡਾਰੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਇਕੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਢਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਵਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਜਾਤਰ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਨ ਹੈ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ